ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு குழலி கிச்சன். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகான கோலம். இன்றைக்கி நம்ம குழலி கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஆகஸ்ட் 26 நடைபெற்ற கிருஷ்ண ஜெயந்தி, எங்கள் கோவிலில் கொண்டாடிய கிருஷ்ண ஜெயந்தியை தாங்க நாம் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கார் கிருஷ்ணர். நடுப்புற வந்து அந்த கிருஷ்ணருடைய ஐம்பொன் சிலை, கிருஷ்ணா ராதாவுடைய சிலை தான் இருக்குது. இந்த இன்னொரு கிருஷ்ணன் இருப்பார், அவர் சைடில் இருக்கிறாரு. பாருங்கள் கீழே அழகாக பானைகளில் தயிர், பால், வெண்ணெய், அவல் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. பக்ஷணங்கள் வச்சுருக்காங்க. கிருஷ்ணன் வந்து உள்ளார நடந்து வர்ற மாதிரி பாதம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஏதோ ஒரு சின்ன பார்க் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இதில் அழகாக மாடு, 2 கிளி மாதிரி 2 இருந்துச்சு. அப்புறம் மயில் மாதிரி இருந்துச்சு. கோபியர் மாதிரி இருக்கிறாங்க. கோமாதா இருக்குது. ரொம்ப அழகாக செட் பண்ணியிருந்தாங்க. கடைசியாக இந்த கிருஷ்ணரும் நடுப்புற இருக்க இந்த செட் பண்ணி அழகாக வச்சுருக்காங்க ரெடியாக. இது சிம்ஹாசனம் மாதிரி. அப்புறமா அந்த கிருஷ்ணர் அதில் உட்கார வச்சுருக்குறாங்க. அந்த கிளிப்பு நான் உங்களுக்கு பின்னாடி எடுத்திருக்கேன். அது அபிஷேகம்லாம் முடிஞ்சு அதில் வச்சாங்க. அது வச்சுருக்கிறேன். இங்கே வந்து ஊஞ்சல், பொன் ஊஞ்சல் கிருஷ்ணருக்காக இருக்குது. பாருங்கள் 2 பக்கமும் அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த கிருஷ்ணர் சிலைக்கும் பாருங்கள், இது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐம்பொன் சிலைக்கு முன்னாடி இந்த கிருஷ்ணர் தான் நம்ம வச்சுருந்தோம். அந்த கிருஷ்ணர் பக்கத்தில் அழகாக கோபிகா ஸ்திரீகளோட கிருஷ்ணர் ரொம்ப அழகாக நிற்கிறாரு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே வந்து பெருமாள், கிருஷ்ணர் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. லக்ஷ்மி எல்லாம் அபிஷேகத்துக்காக. பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நான் அவங்க அழகாக அலங்காரம் பண்ணது எல்லாமே உங்களுக்கு எடுத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பூஜையும் நான் எடுத்திருக்கிறேன். இதில் வந்து சந்தான பாக்கியத்துக்கான பூஜையும் நடந்துச்சு. அது 2வது பார்ட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து கிருஷ்ணனுக்கான பூஜையும் அபிஷேகமும் பார்க்கலாம். पवित्रं गुरुचा सर्वदा कर्ता आसने उपविश्याः खण्डाया वासुदेवं च जिह्वाजान्तो सरस्वती ताण्डनमणि चैवन्वा तण्डे चैव भास्करं नादान्तेश्वरं प्रोक्ता खण्डाया मददेवताः उमाकमार्तं देवानां गमनार्थं सुरक्षितं पूर्वे खण्डारवं दत्त्वा देवताह्वानलाञ्छनम् इति खण्डानादं कृत्वा हवन्तु खण्डायै नमः। अतः आचार्य आसने उपविश्याता भूमिं सम्प्राह அந்த இது மேல ரூம்ல அட்டை இருக்குங்களா, அது மேல தர்பை இருக்கு. வக்ராத்யா பாரிஷத்யா வருஷதம் விக்னம் நிகந்த சததம் விஸ்வக்சேனம் தமாஸ்ரீஹ ஞானானந்தமயம் தெய்வம் நிர்மலாஸ்வலிகாக்ருதிம் ஆதாரம் சர்வவித்யானாம் அயக்ரீவ வபாஸ்மயீஹ மம்ரணோ தேவி सरस्वती वाचे विल्वाजनीपते दीनाम विद्रवरूह आनो दिवो बृहता प्रभाता सरस्वती जता बन्धु हिग्नमवं देवी चुषाण दृढाजे शक्तान्नो वाच वचते शृणोतु वं वाग्देव्यै नमः वमापदामः अत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं श्री गोविन्द गोविन्द गोविन्दः श्री भगवतो महावरुषस्य श्री महाविष्णुवराग्नि प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणा द्वितीयवरार्धे श्री श्वेतवराकल्पे वैवस्वता मन्वन्तरे कलेके व्रतावादे चुम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शताब्दमेरुः अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिके प्रभवादे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्रीमतो श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतुः श्रावणमासे कृष्णपक्षे अष्टमे दिनिम्यानां वासरः वासर प्रतिभारम्यः అష్టల్వా ఇన్నారు ఇల్వల ఇంకెవరు లేరు కదా చెప్పండి. అత్యంత అనుకూలత సిద్ధ్యర్థం ఏ గ్రహాः అరిష్ట స్థానేషు స్థితాः తేషాం గ్రహాణాం అత్యంత అతిశయ శుభ ఏకాదశ స్థాన ఫల వ్యాప్త్యర్థం मम जन्म अभ्यास जन्म प्रभ्यति एतत् मोहन स्तंभन उच्चाटन वशीकरणादि समस्त दोष परिहारार्थं
अपमृत्यु घोर मृत्यु वैशाच मृत्यु शुद्र मृत्यु व्याळ मृत्यु अकाल मृत्यु शर्कर मम संतान इष्टदेवुल्नि मनసులో ప్రార్థన చేసుకోండి. ప్రియతాం ప్రియతాం ఈ ఒక శుభ దినంలో ఈ ఒక శుభ సమయంలో అంటే కృష్ణ జన్మాష్టమి ఈ ఒక శుభ దినంలో మనం ఒక సంకల్పం చేసుకుంటున్నాము. ఏంటంటే మనకు తొందరగా శీఘ్రంగా సంతాన భాగ్యం కలిగిని అని చెప్పేసి, అలాగే మనకుండే అన్ని సంతాన దోషాలను కూడా నివారణ కానీ అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేసుకుంటూ మనకు త్వరగా సంతానం కానీ అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఈరోజు కృష్ణ జన్మాష్టమిని ఆచరిస్తున్నాము. కాబట్టి ఆ భగవంతునితో అందరూ కూడా ప్రార్థన చేసుకుని మనకు శీఘ్రంగా సంతాన భాగ్యం కలిగిన అనేసి ప్రార్థన చేసుకుంటూ, అలాగే మనకుండే అన్ని దోషాలు కూడా నివారణ కానీ అనేసి ప్రార్థన చేసుకుంటూ మహాగణపతితో ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ పూజలో ఎలాంటి విఘ్నాలు రాకుండా ఉండని అనేసి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆ పూమల్లి అక్షంతల్ని భగవంతుని దగ్గర వేసి నమస్కారం చేస్తాం. అమ్మ కాలి తట్ట ఇక్కడ आराधिता सकल निर्विघ्नता बल सिद्धिर सरदादो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कर्ता संपूर्ण कृपा कटाक्ष बल सिद्धिर सरदा मनसा आजामि आराधिता श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। आद्याजामि धनं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि पादाबिन्दयोः वाद्यवाद्यं समर्पयामि केयाचमनिं आचमनीं समर्पयामाचमनेनन्तरतः श्री देवताभिर्मतः स्तपनाङ्गमतः शुद्धोदक स्नानान्तकरिष्ये एवं गङ्गे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरुः वं वैकुण्ठवासिने विराजायै नमः। स्तपनाङ्गमतः शुद्धोदक स्नानान् समर्पयामः वस्त्रार्थमतः अक्षतान् समर्पयामः अलङ्करणार्थमतः हरिद्रा कुङ्कुम सिन्धूराणिं धारयामि अलङ्करणार्थमतः हरिद्रा कुङ्कुम सिन्धूराणिं धारयामि विघ्नोपवीतार्थमतः अक्षतान् समर्पयामि गन्धद्वारार्थमतः दिव्या सुमनसा प्रबलगन्धान् धारयामि आभरणार्थमतः अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि योपामुष्पं वेदावश्यवान् प्रजावाहान् वशमान् भवति यजेवं वेदाजोपामाकेतनं वेद आकेतनवान् भवति यतः वश्यमालिकान् धारयामि वश्यमालिकानन्तरतः पूर्वचरिता एवं गणविशेषण विशिष्टायामस्यां शुभतितो श्री परिमलाद्युपमाग्रापयित्वा हवम् ओहं दूर्वते दूर्वधूवन्नं दुरदूष्मानुर्वदे तन्दूर्वें सुमनसा परिमलाद्युपमाग्रापयामि धूपानन्तरतः श्रीदेवता प्रमदा यत्किञ्च परं निवेदयित्वा हवं भूर्भुवस्वाहा स्वाहवं वक्रतुण्डमहाकायकोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा शरणं महागणाधिपतये नमः। कर्ता सम्पूर्ण कृपा कटाक्ष बलसिद्धिरसरदानन्दमङ्गल एकारत दीपान् सन्दर्शयामि वृक्षरक्षान् धारयामि नमस्करोमि मदः मध्ये मध्ये अमृतपानं आनन्दमङ्गल एकारत दीपान् सन्दर्शयामि वृक्षरक्षान् धारये प्रीतामित भवन्तो सा कुम्भेन किञ्चित् जलेन निह्नीय फलसिद्धिरस्तु धयातु ॐ भोः कृष्णदेवतमावाहयामि ॐ कृष्णदेवतमावाहयामि திரும்போது ஏன் திரும்போது సమేతంగా ఆ కృష్ణ స్వామిని ఆవాహన చేయడం జరుగుతుంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ చేస్తే అందరూ వస్తే బాగుంటుంది. మన కుటుంబాలు, మన బంధువులు, మన మిత్రులు అందరూ వస్తేనే ఆ ఫంక్షన్ చాలా బాగుంటుంది. మనం ఒకరే చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది మా ఇంట్లో చెప్పండి. కాబట్టి భగవంతుని కూడా ఒక్కనే ఎప్పుడు కూడా ఆవాహన చేయడానికి కాదు. కాబట్టి వాళ్ళ పరివారం ఏముంటుందో వాళ్ళందరి సమేతంగానే భగవంతుని ఆవాహన చేసుకోవాలి. కాబట్టి మన ముందు ఉన్నారు అనే భావంతో మనం ఇప్పుడు పూజ చేయాల్సి పడుతుంది. భగవంతునికి మనం ఎలా పూజ చేయాలి అంటే భగవంతుని పిలుచుకొని అంటే ఆవాహన చేసేటప్పుడు వాడు రాజాదిరాజుడు, త్రిలోకాధిపతి, వారికి ఎవరు సాటి లేదు అనే భావంతో మనము ఆ భగవంతుని ఆవాహన చేయాలి. అలాగే ఆ భగవంతుని ఉపచారాలు అంటే ఆ భగవంతుని సేవలు చేసేటప్పుడు మాత్రమే
ఆ భగవంతుడు క్షమ వాయిని మనము ఏమైనా అడుక్కోవాలి అంటే మళ్ళీ వాయిని ఇంకా మిగిలి ఎవరు లేదు అని భావంతో అతర్వణ చందా వంశీ ప్రాణశక్తి పరదేవతా రామ్ బీజం హ్రీం శక్తి రుం కిలమనామి కావ్యరాకళ తలపృష్టాభ్యా నమః ఓం రామ్ హృదయాయ నమః ఓం హ్రీం శిరసే స్వహ ఓం రుం शिकाये औषधो ओं ह्रीं कवचं रां नेत्राय पडो भूर्भस्वरति दिग्बन्धः आवागिता श्री कृष्णस्वामिने नमः प्राणः मम प्राणः आवागिता श्री कृष्णस्वामिने नमः चित्तस्वामिने नमः प्राण प्रतिष्ठापन मुहूर्तो सुमुहूर्तो अस्तु स्वस्तिन अन्नगृह्णन्तु आवागिता श्री कृष्णस्वामिने नमः आवाहन स्थापनाय नमः ओं अग्नये नमः ओं यमाय नमः ओं निरृतये नमः ओं वरुणाय नमः ओं वायुवे नमः ओं कुबेराय नमः ओं ईशानाय नमः मध्यक्षं क्षेत्रपालकाय नमः आराधिता श्री कृष्णस्वामिने नमः अष्टदिक्पालक पूजां समर्पणन्तरतः देवदेव जगन्नाथ भक्तवत्सल आराधिता श्री कृष्णस्वामिने नमः अर्घ्यासनागं देवी शांगी कृतयानुदेवं भूर्भुवस्व तस्य पितुर्वरेण्यमर्गो देवस्य देवहि धियो यो न प्रचोदयातस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मम त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यात्मदा आराधिता श्री देवताभ्यो नमः प्रथमता हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि प्रथमता हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादाबिन्दयोः वाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि आचमनेनन्तरतः श्री देवता ब्रह्मता प्रभनाङ्गमतः शुद्धोदक स्नानां करिष्ये हेममापोजिष्टामयो भवस्तानभूते धनातन महेरणा यजक्षते योव शिवतमो रसस्तस्य वाजेते अनः विशतीरिव मातरः तस्माहरङ्गमामभूजस्य क्षया यजन्वत आपोचने काचनः आराधिता श्री देवता ब्रह्मता स्थापनाङ्गमता शुद्धोदकस्नानां समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरतः श्री नाप्यायस्व समेतु ते विश्वतस्तु मरुष्णियं भवाभाजस्य संगते क्षीरेण स्नापायामि मुमाप्याजस्व समेतु ते विश्वतस्तु मरुष्णियं भवाभाजस्य संगते क्षीरेण स्नापायामि आराधिता श्री देवताभ्यो नमः क्षीरस्नानां समर्पयामि क्षीरस्नानानन्तरतः शुद्धोदकस्नानां समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरतः आराधिता श्री देवताभ्यो नमः दत्ना स्नापायामि मुन्न ददिग्राहुण्यो अकारिषं जिष्णोरस्वस्य भाजिनः सुरभिनो मुखाकरदोः प्रणायुगुञ्जिधारिषदोः दत्ना स्नापायामि मुन्न ददिग्राहुण्यो अकारिषं जिष्णोरस्वस्य भाजिनः सुरभिनो मुखाकरदोः प्रणायुगुञ्जिधारिषदोः दत्ना स्नापायामि दत्नस्नानानन्तरतः श्री देवताभ्यो नमः आज्येन स्नापायामि मुं शुक्रमासे ज्योतिरसेः देशोऽसि देवो वसवितोत्पुनाद स्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसु सूर्यस्य रश्मिभिः आज्यस्नानां समर्पयाम्यस्नानानन्तरतः मधुना स्नापायामि मुन्न मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्वेण सन्दोषदे मधुनक्तमधुदशि मधुभत्पार्तिभगुं रजः मधुद्यौरस्तु नभिकाः मधुभागमस्तु सूर्यः मार्दीर्घावो भवन्तु नः मधुना स्नापायामि तथा आराधिता श्री देवताभ्यो नमः मधुस्नानां समर्पयामि शर्कराजास्तां दिव्या जगन्मने स्वादविन्द्राय स्ववेतु नाम्नेः स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पते मधुमा आदाप्यतः श्री देवताभ्यो नमः शर्करस्नानां समर्पयामि शर्करास्नानानन्तरतः ीर्याः बल आपुष्पाजा च पश्वने बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन् भगुंवसः आराधिता श्री देवताभ्यो नमः फलोदकेन स्नापायामि मुञ्य बलिनीर्याः बल आपुष्पाजा च पश्वने बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन् भगुंवसः आराधिता श्री देवताभ्यो नमः कर्ता सम्पूर्ण कृपाकटाक्षबलसिद्धिरसनतः फलपञ्चामृत अभिषेकस्नानां समर्पणन्तरतः श्री देवताभ्यो नमः
अलङ्करणार्थमदा चरित्रा कुङ्कुम सिन्दूराणिन्दारजामिं भूमिर्देनुधरणे लोकधारणे उद्धृता स्वराजेन कृष्णेन आराधिता श्री देवता प्रमदा कर्ता संपूर्ण कृपा कटाक्षबल सिद्धिर्सनदालङ्करणार्थमदा हरिद्रा कुङ्कुम सिन्दूराणिं धारयामि पुष्पे पूजयामि योपाम् पुष्पं वेदांशमान् प्रजावाहान् वशमान् भवते जगेवं वेदायोपाभाग्यजनं वेदाख्यतरमान् भवते कुन्दूर्वते धूपधूपं ब्रह्मतः सत्यं दुर्तेन वदसुञ्जयामि अमृतो वा अमृतो संवदे स्वं प्राणाज्य स्वपानाज्य संयानाज्य समुदानाज्य संमानाय स्वं ब्रह्मणे स्वान्दमङ्गल एकालति दीपान् सन्दर्शयत्वाहं वसुते वसुतं देवं तं सदानन्दवर्धनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं आराधिता त्वे देवताभ्युत्तमः कर्ता सम्पूर्ण कृपा कटाक्षबल सिद्धिर्सनदानन्दमङ्गल एकालति दीपान् सन्दर्शयामि वृक्षरक्षात् धारयामि नमस्करोमि आराधिता श्री देवता पर्वता बलवञ्चामृत अभिषेक स्नानान् समर्पयामि वृक्षरक्षान् धारयामि நமஸ்கரோமி. இது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த விநாயகருக்கான அர்ச்சனையும் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருடைய அபிஷேகத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் வந்து சந்தான பாக்கியத்துக்காக கொஞ்சம் பேரை முன்னாடி உட்கார வச்சு அந்த கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் பூஜையெல்லாம் பண்ணாங்க. அது வந்து 2வது வீடியோ காணொலியில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த கிருஷ்ணருக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு கோமாதா இருந்தாங்க, ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அது இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா கூட நான் அடுத்த காணொலியில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதோடைய தொடர்ச்சியை வந்து நீங்கள் அடுத்த காணொலியில் காணலாம். வாழ்க வளமுடன். நன்றி.